everyone. Online class 10th, subject SST, chapter 6, part 5. रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना. Roads are for facilitating easy transportation and service, but drivers drive at a very high speed and carelessly, and as a result, the numbers of road accidents in increasing. Following are the reasons of road accidents: violations of traffic rules, rush driving in drunken state, improper maintenance or road, so also vehicles. Safety measures to be adopted. सड़क सुरक्षा की जागरूकता. Start driving only when you are competent to drive. Follow your lane on the road. This is the best way to be safe on the road. Now the road signal and follow them. During rains, drive very carefully. While driving, do not increase or decrease the speed of your vehicle abruptly. Drive at a speed as indicated on the signboard put off on highway and by the vehicles manufacturers of your vehicles. Read the instructions book which is supplied by the company along with the vehicle and follow the instructions regarding driving and parking of the vehicle. See on both the sides of the road while crossing the road. Do not try to overtake unnecessarily and at spot where it is not permitted. If vehicle is downed, come out from the window. In case of fire, come out of the vehicle as soon as possible. Do not bother about the luggage articles. Do not talk on the cell phone while driving. Two-wheeler, always use helmet. Always use seat belt while driving car or any other four-wheeler as required under rules. अब जैसे सड़क सुरक्षा में जागरूकता. ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन न चलाएं. इसकी पात्रता 18 वर्ष होनी चाहिए. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 3 वर्ष की जेल अथवा 5 रुपये जुर्माना और दोनों सजाओं का प्रावधान है. सड़क पर सुरक्षित रहने के सबसे सुरक्षित तरीके हैं अपने लेन में ही गाड़ी चलाना. सड़क पार करने से पहले सड़कों को दोनों दाएं बाएं की ओर देखें और तब सड़क पार करें. यथासंभव जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें. वाहन चलाते समय गति का एकदम कम या तेज ना करें. वाहन चलाते समय सड़कों के किनारे आवश्यकता अनुसार लगाए हुए संकेत चिन्हों का पालन अनिवार्य रूप से करें. दुर्घटना का बचाव के लिए लगाए जाते हैं. महत्वपूर्ण संकेत चिन्हों की जानकारी नीचे दी गई होती है. सिग्नल के जैसे आधार लाल बत्ती वाहन को रोकना, पीली बत्ती चलने को तैयार होना और हरी बत्ती काहे के लिए होती है? आगे बढ़ना. बरसात में मौसम में गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखना चाहिए. सड़क अथवा पुल पर बाढ़ का पानी भरा हो तो उसमें से बाहर निकालना का प्रयास ना करें. आग लगने की स्थिति पर जितनी जल्दी संभव हो वाहन से बाहर निकल आवे और अपने सामान की चिंता ना करें. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें. 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. 2 से अधिक व्यक्ति की सवारी ना करें. 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. सीट बेल्ट पहनना सड़क यातायात के महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है. सीट बेल्ट का उपयोग से दुर्घटना के समय गाड़ी में बैठे व्यक्ति की मृत्यु की संभावना 5% तक कम हो सकती है. इन वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अब सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है. रेल एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना. रेल एक्सीडेंट usually occur due to lack of maintenance of railway track and railway engines, bogies, etc. Human error and derailment. Derailment is sometimes caused by damaging the rail other system by antisocial element.
Flowing steps should be taken to save ourselves from rail accident. रेल दुर्घटना रखरखाव की कमी, मानवीय त्रुटियों तथा तोड़फोड़ की कार्रवाई का पटरी से उतरने से होती है। रेल दुर्घटनाओं की सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। Always pay attention towards the signals and swing barrier when the gate is closed. Barrier is put. Do not try to cross the railway line from under the barrier. रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल और स्विंग बैरियर को ध्यान रखें, उनके नीचे से निकलकर क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश ना करें। When crossing a railway line where there is an unnamed level crossing, always see on both the sides of the railway line to be sure that there is no train engine up to a long distance. यदि क्रॉसिंग पर कोई कर्मचारी मौजूद है तो पटरी पार करने से पूर्व वाहन से उतरकर पटरी का दोनों तरफ दृष्टि डालें। One should not smoke in the train or carry inflammable material. ज्वलनशील सामग्री लेकर न चले। रेलगाड़ी में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। While traveling, do not stand in the entrance gate or lean out from the window or door. रेलगाड़ी में सफ़र करते समय दरवाजे पर ना खड़े हों और ना ही बाहर की तरफ झुकें। यूज़ द इमरजेंसी विंडो टू कम आउट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। डू नॉट फुल चैन अननेसेसरीली। आपातकालीन खिड़की की दुर्घटना के समय बाहर निकलने हेतु उपयोग करें। आपातकालीन चैन की बिना जरूरत के ना खींचें। प्लेन एक्सीडेंट्स, हवाई दुर्घटना। ड्यूरिंग एयर लेवल the safety of passenger is affected by many factors. The air travels becomes risky when. हवाई जहाज़ में यात्री की सुरक्षा अनेक कारकों से प्रभावित होती है। हवाई जहाज़ में यात्रा निम्न स्थितियों में जोखिमपूर्ण हो सकती है, जैसे जहाज़ में आग लगना, जहाज़ में ज़मीन पर उतरने और उड़ान भरने की स्थितियों में, पहाड़ी प्रदेशों में आने वाले तूफान, हाईजैकिंग, बमों का आक्रमण। हवाई जहाज़ में प्रवेश के बाद इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। Fire breaks in the aeroplane in condition of plane or weather etc. are not congenial at the time of landing or takeoff. Tornado occurring in hilly regions, hijacking and bomb attack. After boarding a plane, flying trips should be followed. Listen carefully to the इंस्ट्रक्शन ऑफ द पायलट एंड फ्लो डैम। विमान चालक दल द्वारा सुरक्षा का संबंध में जो भी बातें बताई जाए उसे ध्यान दें। रीड द कार्ड रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स केयरफुली। सुरक्षा अनुदेश कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फाइंड आउट इन एडवांस द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट डोर एंड द वे इट कैन बी ओपनड। यह पता कर लेवे कि निकटतम आपातकालीन निकासी कहाँ है और आपातकाल में उसे कैसे खोला जाएगा। आफ्टर सीटिंग टाई द सीट बेल्ट्स। जब सीट पर बैठे तो सीट बेल्ट अवश्य बांध लें। व्हेन काउच्ड इन एन एक्सीडेंट कीप क्लेम। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्रू and act only according to their instructions. It is the responsibility of the crew members to help passengers alight come out of the plane safely. हवाई दुर्घटना में फंस जाने पर शांत रहें। चालक दल की बात ध्यानपूर्वक सुनें और उनको बताए अनुसार भी कार्य करें। केबिन चालक दल का दायित्व है कि यात्रियों को सुरक्षित उतारने में मदद करें। प्लीज try to open the emergency door yourself. Look from the window to check whether fire is there outside the plane. If it is there, do not open the door, otherwise the flames can reach the cabin. Find out alternative exit ways. आपातकालीन दरवाज़ा खोजने से की कोशिश स्वयं करें। खिड़की के बाहर दृष्टि डालें। यदि दरवाजे के बाहर आग दिखाई देती है तो दरवाजे को न खोलें, अन्यथा आग की लपेट केबिन तक फैल सकती है। जहाज से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढें। प्लीज रिमेंबर स्मोक गोज अपवर्ड्स, देयरफॉर इफ देयर इज स्मोक इन देन केबिन ट्राई टू बी क्लोज टू द फ्लोर
flows the emergency floor light and reach up to the emergency gate. Cover your face and nose with handkerchief और any pieces of cloth. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धुआं ऊपर की तरफ चढ़ता है। यदि कैबिन में धुआं है तो नीचे रहने का प्रयास करें। फर्श में लगी आपातकालीन लाइट के मार्ग का अनुसरण करते हुए निकास द्वार तक जाएं। कोई कपड़ा या रुमाल को नाक व मुंह पर ढक लेवे। एपिडेमिक डिसास्टर, महामारी आपदा। एन एपिडेमिक is a disease or health related problem which spread unexpectedly on a large scale. The conditions of epidemic is said to be one when the number of cases parents is more than expected. This requires emergency preventive step. An epidemic can spread abruptly when the number of cases of particular diseases increase disproportionately. That is considered to be warning of an epidemic. In some instances, the breeding places of germs that causes the disease increase or the carriage of germs start dying. Rats who are carriers of plague germs, an advance warning of the epidemic is received. महामारी को किसी ऐसे रोग अथवा स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो असाधारण अथवा अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने तक फैल जाती है। महामारी अथवा प्रकोप की स्थिति तब होती है जब किसी रोग विशेष को ग्रस्त मामलों की संख्या अनुमान से अधिक हो जाती है। इसके आपातकालीन नियंत्रण उपाय करना जरूरी हो जाता है। कोई भी महामारी तेजी के साथ अथवा अचानक फैल सकती है। किसी रोग विशेष में ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने से महामारी का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में रोगवाहक प्रजनन स्थलों में वृद्धि अथवा रोगवाहक संवाहकों फ्लैग पिस्सुओं द्वारा चूहों तक ले जाया जाता है कि रोग संवाहकों की मृत्यु के आधार पर भी महामारी का पूर्वाज्ञान या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। Causes and effects of the epidemic, महामारी के कारण व प्रभाव। Causes of an epidemic are worms, germs, bacteria, protozoa, fungi, polluted water, and food items, or increase in the number of mosquitoes, large crowd to tourists and passengers from the outside, and effect of natural calamities on the atmosphere also bring epidemics. अब महामारी का प्रकोप का प्रमुख कारण विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा कवक होते हैं। खाद्य पदार्थों एवं पेयजल के दूषण, बारिश के मौसम से मच्छरों की वृद्धि, पर्यटक एवं प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़ या तथा वातावरण पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी महामारी का प्रकोप लाता है। Epidemics are responsible for diseases and death. महामारी रोग एवं मृत्यु के लिए जिम्मेदार। Epidemic cases economic loss and disintegrations of the society. The people most affected by epidemics are the ones suffering from malnutrition, living in unhygienic atmosphere, water supply system is bad, health faculties are poor, and whose immune system is weak. If a place has been affected by a natural calamity, volcano floods, whirlwind, tsunami, illness, there are epidemics create dangerous conditions. महामारी रोग एवं मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती है। महामारियां से समाज में विघटन होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। महामारियों में ऐसे लोग अधिक प्रभावित होते हैं जो कुपोषित होते हैं या अस्वच्छकरण हालातों में रहते हैं, जहां जल आपूर्ति घटिया होती है और जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता नहीं होती है। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है वह महामारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यदि किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी पहले आ चुकी है तो महामारी का प्रकोप जीवन के लिए भयावह स्थितियां उत्पन्न कर देता है। पॉसिबल मेजर्स, संभावित उपाय। इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंड हेल्थ फैकल्टीज फ्रॉम स्टेट लेवल टू विलेज लेवल
It is also necessary for the health workers, nurses, etc. to do advanced planning and coordinate efforts with other co-workers। महामारी के विन्यास को रोकने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तृत किया जाना आवश्यक है। अतः राज्य, जिला, उपकेंद्र तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं नर्सों को पूर्व तैयारी एवं तालमेल बनाना आवश्यक हो जाता है। When it is seen that the effect of the epidemic is decreasing, then emergency plan for future action should be prepared and a monitoring system should be developed on the basis of available medicines, laboratories, doctors, and supporting staff. A list of available personnel should be prepared so that they can be deployed when and where necessary। जिन महामारियों के घटने की आशंका किसी क्षेत्र में है तो जवाबी कार्रवाई के रूप में उसकी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए तथा नियमित निगरानी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपलब्ध दवा, टीके, प्रयोगशाला इकाइयाँ, डॉक्टर और सहयोगी स्टाफ की संख्या दर्शाने वाली सूची तैयार करनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने में उसका उपयोग संभव हो सके। Training should be imparted to concerned staff at all levels with regards to the epidemic and safety measures. This will help in capacity building of the staff and their services can be utilized। महामारी एवं उनके सुरक्षा उपायों पर आधारित प्रशिक्षण सभी स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए जिसकी क्षमता निर्माण के साथ बेहतर ढंग से आपात स्थिति से कार्य लिया जा सकता है। Vaccination will help save people and minimize the effect of the diseases। टीकाकरण के जरिए व्यक्तिगत बचाव तथा दुष्प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। The carriers of disease should be destroyed by improving sanitation, find out breeding centers of disease carriers, smoke treatments, spray of insecticide, improvement in the waste disposal system, and keeping the sources of water supply pollution free are some of the preventive steps। संक्रामक वाहकों के समान स्रोतों से निपटना आवश्यक है। स्वच्छता में स्थिति को सुधार लाना, रोग वाहक के प्रजनन स्थलों का पता लगाना, धुआं देने का अभियान, कीटनाशक का छिड़काव तथा अपशिष्टों के निपटान के तरीकों से सुधार और जल स्रोतों के संक्रमण से मुक्त कराना मुख्य संभावित उपाय है। डिसास्टर मैनेजमेंट, स्टेजेस ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के सोपान। Disasters are unexpected incidents, occurrences of which is beyond human control. They occur abruptly and hamper the normal human activities. To meet the challenges of such disasters, much more need to be done than the minimum emergency services provided. Disasters are not only the result of natural phenomena but they are closely related with human activities also. Some human activities are directly related with the disaster like the Bhopal gas tragedy, Chernobyl atomic tragedy, war, chlorofluorocarbons releasing gas in the atmosphere, greenhouse gases, noise, air, water, soil and environmental pollution. Some human activities indirectly affect the environment, example landslides and floods due to destruction of forests. It is a fact that during the last so many years disasters connected with human follies have increased. Efforts to prevent them were also made, but we have succeeded only to a limited extent. It is difficult to check natural disasters, therefore it is better to minimize their effects with a proper disaster management. Many efforts have been made in this direction. Important step in these directions are setting up of Indian National Disaster Management Institute, the Summit Conference of May 1994 in Yokohama, Japan, and conference seminars etc. on disaster management। आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों पर घटित होती है जो मानव के नियंत्रण पर नहीं है।
यह थोड़े समय पे बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं और बड़े पैमाने में जान माल का नुकसान होता है, जिससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम मानता रहा है और मानव इसकी अबोध एवं असहाय शिकार, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति के संबंध मानव क्रियाकलापों से है। कुछ मानवीय गतिविधियों तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी थे, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे वनों का विनाश से भूस्खलन और बाढ़। यह सामान्य सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में मानवीकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों ही वृद्धि हुई है। ऐसी घटनाओं के बचने के लिए प्रयत्न भी किए गए हैं। इन संदर्भ के में जब तक सफलता नाम मात्र की हाथ लगी है, परंतु इन मानवीकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके प्रभाव को कम करना और इनके प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भी भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी आदि प्रयास प्रमुख हैं। थैंक यू।